Okay, dear students. Now we are going to learn the multiplication with 11 and 19. So are you all ready for that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's great. So let us start today's multiplication with 11 to 19. So 11 multiplication, so I already told you yesterday. Rest all 12, 13 up to 12, 13, 14, 15 up to 19. This is a special case. If we are multiplying with this much number only, then we will get the easy answer. Okay. In place of ordinary method, we can follow this method only. Suppose, just for example, 23 multiply 12 we are doing. So what to do you know that? So when we multiply 23 with 12, then always we need to write 23. After that, we are putting one zero here, and we are going to multiply only with the 2. Only with the 2. But with certain rules. That is, 2 into 3 become how much? 6. 6, Okay. Then 2 into 2 become 4, 4. 4 plus 3 become how much? 7, Okay, that's great. Now, 2 into 0 become how much? 0, 0. Then again 0 plus 2 become 2. So answer 2, is ready. 276 is the answer if we multiply 23 with 12. Understood? Now it's a smaller question I have given. Now I am giving 5. This is the 4-digit number and I am multiplying with the 13. So when I multiply with the 13, what to do? Do you know that? At first we need to write 0, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 is there. Before that, I just added 0. Clear? And I'm just going to Yes, multiply sir. only with the 3. So this is a special case. Okay. Now, 3 5 ja how much? 15. So 5 carry 1. 3 4 ja 12. 12 plus 5 how much? 7. 17. 17 plus 1 become 18. 8 carry 1. Then 3 3 ja 9. 9, 9 plus 4 become how much? 13, 13. 9 plus 4. Previous number we have to add. 13. 13 plus carry 1 become 14. 4 carry 1. Then 3 2 ja how much? 6. 6, 6 plus 3 become 9. 9. 9 and 7 again carry carry 1. 1 10. 0 1. After that 3 zeros are 0, 0. 0 plus 2 become 2. 2 plus carry 1 become 3. Directly this is the answer. Okay, na? So what is the formula here we are getting? Suppose we are multiplying with A, B, C, D, E, and if we are multiplying with the F, then what we are doing? At first we are multiplying these two, and answer we are writing directly here. Suppose I'm multiplying F into with the previous digit, that is E. After that, directly we are writing here Y. After that, again F into C we are multiplying, and whatever the number is coming, we are adding with this previous digit and directly writing here. Okay. Again, F we are multiplying with B, and the multiplication result has to be added with the C. Then whatever number is coming, we are writing it here. Okay. Again, Sir, B. This is a multiplication and this is the addition. After that, whatever result coming, that is we are writing it here. So this is the formula which I have written, and it is valid only for 12 to 19. 12 to 19. All the multiplication part I have already finished. So I thought that 11 to 19 series has to be told to you so that you will understand and take action accordingly. So this is the way which I have told you. So are you understanding this? We can do some more questions also, no Yes, problem. sir. Okay. Sir. Now the next question is 3, 2, 4, 1. Then if we multiply with 14, what to do? First of all, who can tell me? Sir, 0, 3, 2, 4, 0, 1 3, into 4, 1 into 4. 4. 0, 3, 2, 4, 1. I have written. After that, with whom I will multiply? Sir, with 4. With 4 we are going to multiply. So I have written only 4. After that, 4 1 ja 4. 4,
4. Then 4 4 is a 16. 16 plus 1, 16 17. plus carry 1 become 17. So 7 I have written, 17. carry 1. Then 4 2 is a See, 8. 8. 8. 8 plus 3 become 8 plus 4 become Sir, 12. 12. 12 plus carry 1 become 13. 13. So 3 carry 1. Then 4 3 is a Sir, 12. 12. 12. 12 plus 2 become 12 plus 2 become 14. 13. 13. 14 plus 14. 1. 14 plus carry 1 become 15. 5 carry 1 again. Then 4 0 is a 0. 0. 0. 0, Plus 0 plus 3 3 become plus 1 is 4. 3. 3 plus carry 1 become 4. So So 4, 4 5, 5 3, 3 7, 7 4 4. is the this is the correct answer. Now you will be taking the screenshot this one and you will be posting it in the our WhatsApp group. Okay, this page only. Let me do one more question here, then you will be posting it. Next question I am taking 3 2 1 2 7 3. This is the bigger question and we are multiplying with the 16. Okay, we are multiplying it with 16 and it is valid up to 19. Okay, then what to do? 0 3 2 1 2 7 3. Shivam, understanding? Yes, sir. I'm just Shivam, doing are you it. there? Understanding. Okay, great. Now we are going to multiply it with a 6. So let us do. So it should be done orally, huh? Directly, just we are writing because it is a beginning part only. But you should know how to do it mentally. Yesterday I have given a lot of messages to you. How, what are the Yes, different sir. levels and how to achieve it. 6 3 ja 18. So 8 carry 1. 6 7 ja 42. 42. 42. So 6 I am writing, carry 4. Then 6 2 ja 12. 12 plus 7 become 19. 19 plus 4 become 23. 23. So 2 Sir, carry 3 I have written. Then 6 1 ja 6. 6 plus 2 become 8. 8 plus 2 become 10. So 0 carry 2. 6 2 ja 12. 12 plus 1 become 13. 13 plus carry 2 15. 5 I am writing, again carry 1. So 6 3 ja 18. 18 plus 2 become Sir, 18 plus 2 20. become 18 plus 2 become 20 and carry 1 become 21. So 1 I'm writing, carry 2. Then after that 6 0 ja 0. 0 0. plus 3 become 3. 3 and carry 2 become 5. 5. 5. 5, yes. Okay. So our answer is ready. So without writing this much, we can do directly. Okay. So dear student, you can take screenshot and you can post it in our group. Take this screenshot and somebody can post it in the group. So this is called as multiplication with 11 to 19. I hope the concept is clear. And if the concept is clear, we can move to next concepts also. So done. Yes, sir. Great. Very good. Yes, sir. Okay. Yes, yes. So finally it is already posted in the group. No problem. Very good. Okay. Another person has also done this. Raman also has done. No problem. So dear student, let us move forward. So now we are moving forward to the direct next part that is called as division. So are you all ready to learn this division? Yes, sir. Because division is completely a different concept and a student, you all will enjoy this division like what you have enjoyed in the multiplication. So I hope you all will be start learning this division process one by one. So dear student, the first one I'm just going to tell you, division with single digit. This is division with Single digit. single digit. It is so simple. It may be done by many people, those who follow.
Just for example, if I divide 4327 divided by 3, then how people used to do this and how you may be doing and how it has to be done according to Vedic method. First of all, we will be writing 4327. Then we will be dividing it with 3. Then we will be dividing it with 3. Then what to do? 3 1 ja 3. 3 1 ja 3. Then 4 minus 3 become 1. Yes, sir. Are you getting the student? I'm just putting one bar here. Better it will be good. Okay. So 3, this 1 ja 3. So 4 minus 3, it has to be done mentally. 4 minus 3 become 1 and that 1 has to be written here. After that, what did this become? This become 13. One small one and above 3 become 13. So how much it will go? The for the 3 for 12. Again 3 I'm here because 1 is remaining, so 12 again. 3 4 ja 12, then finish. Then after that, how much it will go? 3 2 ja 6. 3 2 ja 6. So 7 minus 6 become how much? 1. So this is the quotient and this is the remainder. Okay, I hope the process is known to everyone. Now second question. Yes, sir. 379243 divided by 8. So shall we start? How much it will go in the first round? 8 4 ja 8 4 ja 32. Sir. So 37 minus 32 become how much? 5. Is it? So I'm writing 5 here. yes, sir. I'm writing 5 here. So what did this become? These two digit is over already. Now next is 59. How much it will go now? So 7. Very good. 56. 8 7 ja 56. So 59 minus 56 become 3. So again I'm writing that carry 3 become here. So what did this number become? 32. Then 4. how it will come? 4. 8 4 ja 32, directly 0. After that 4 is there. Will it go? It will not go. Then we will put 0. After that, what is the next number? 43. How much it will go? 5. 8 5 ja 40. Then 43 minus 40 become 3. So directly we are writing 3. That is the remainder. Okay. So this is the quotient and this is the remainder. Okay, clear? So this is also single liner. Yes, sir. In the single line we have done, but it is with the single digit. It is so simple and many people may be knowing this. That's why it is not so difficult. Okay, so now I'm giving one questions to everyone. 48275 and all the person has to divide in my method. Okay, this is Vedic method with 7. Please try to do this. Is it done? It is so simple.
Done, sir. Sir, 6, Oh, 8, very 9, 6, 2. Okay, very good. 7, 8, 9, 6, 2. 1. Sir, 7, Sir. 8, 9, 6, 2. Okay. All together, all are saying very good. You are doing perfectly. Sir, Let us And the see. remainder is 1. 7 6 ja 42. So 8 minus 2 becomes 6. So it becomes 62 now. Then how much it will go? 56, 7, 8. 7 8 ja 56. Then what is the remainder? 6. I'm writing 6 here again. Then 7 9 ja 63. So 67 minus 63 become how much? 4. I'm writing it here 43. Now what is the next number? 7 6 ja 42. Then 43 minus 42 become 1. It become 15 now. Then 7 2 ja 14. 15 minus 14 become carry 1. So 6 8 9 6 2 is the quotient and 1 is the remainder. Whatever will come out of box is the remainder. Is it okay? sir, Yes. sir, can you, 9. 9. Yes. sir, Yes. Tell me. sir, can you explain it once? I have not understood. Okay. Very good. 4 8 2 7 3 5 I have written. And now I'm just going to do the division. Okay. So by which number? 7. So how much it will go? 48. 7 6 ja only. 7 6 ja 42. है ना? Yes, So sir. that we should not write, but still I'm writing. So 8 minus 2. देखो 48 से 42 माइनस करोगे कितना होगा? 8 minus 2 become how much? 6. तो ये जो 6 है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. Okay, 6. Yes, sir. Then what is the new number become? 62. Then how much it will Yes, go? sir. 7 8 जा 7 Yes, 8 जा how much? 56. नहीं लिखना है Yes, इसको. लेकिन what is the remainder now? 62 minus 56 become 6. So I'm writing it here 6. Now the new number is equal to 67. How much it will go? 7 9 ja 63. Okay. Then how Yes, much sir. is remaining? 7 minus 3 become 4. So directly I'm writing 43. Now it is 43. How much it will go now? 7 6 या 42. तो ये फिर 43 से 42 गया, फिर 1 रिमाइंडर आया. So 1 remainder I'm writing here. So 7 2 ja 14. So 15 minus 14 become 1. Remainder is equal to 1. So this is the quotient and this is the remainder. I hope the concept is clear to everyone. Yes, sir. That's great. So shall we Yes, move sir. forward? Shall we move forward Yes, to the sir. next question? Good. So let us move forward to the next question, and that is division by 5. This is the smaller question. After that, I will be telling you the universal question also. Division with 5. So it is so simple. But I will be giving you the complete and easiest process so that you can do this calculation without any mental pressure. In the normal method, how we used to do? 4 3 2 7 9 divided by 5. How to do? How to do? 5 8 is a 40. Then 32 comes. Then after that 5 6 is a 30. Then 2 remainder. Again it become 27. Then 5 5 is a 25. 7 minus 5 become 2. Then 9. Then 5 5 is a 25. Then 9 minus 5 become 4. So this is the quotient and this is the remainder. So are you all interested to do this division in the single liner with the help of tricks? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if we divide 4, 3, 2, 7, 9, and if we are going to divide it by 5, then directly do multiplication of this number by 2. ये जितना भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. कितना होगा? 9 2 ja 18, 8 1, 7 2 ja 14 plus 1 15, 5 1, 2 2 ja 4 plus 1 5, 3 2 ja 6, 4 2 ja 8. Done. And directly यहाँ पे decimal दे दो. Finish. This is the answer. देखो यहाँ पे भी एक स्टेप जा सकते थे. यहाँ पे डेसिमल देने के बाद क्या होगा? 40. देन 5 8 जा 40 हो जाता. तो फिर फाइनली रिमाइंडर तो नहीं आएगा, ये रिमाइंडर अलग है, लेकिन ये डेसिमल में निकल जा रहा है. 86558 डेसिमल 8. डायरेक्टली इज इट सिंगल लाइनर?
Sir, where to put the decimal? जस्ट वन स्टेप बैक। दूसरा वाला Yes, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 327985243 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 5। कितना लंबा लगेगा, बट वी कैन डू इट फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी ये बिगिनिंग वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, देन आई विल बी टेलिंग यू द रीजन आल्सो। सो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 0 1, 8 2 जा 16 plus 1 17 7 1, 9 9 जा 18 plus 1 19 9 1, 7 7 14 plus 1 15 5 1, 2 2 4 plus 1 5 and 3 2 जा 6। ये हो गया, और इसका एक डेसिमल पहले से डेसिमल लगा दो, हो गया। यही है आंसर, सिंगल लाइनर। Sir, why we are putting decimal? डेसिमल होगा ना, देखो क्योंकि ये तो लाइव एग्जांपल है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था हम लोग का 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था 4, तो यदि डेसिमल Yes, देंगे sir. तो यहाँ फिर 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40 होगा कि नहीं, ये Yes, है। sir. तो ये वाला जो डिवीजन है देखो, डेसिमल भी निकाल दे रहा है। इज इट सो इजी? Yes, sir. ओके, तो अभी पूछोगे कि सर इतना इजी मेथड कैसे हो रहा है, कभी सोचे थे इतना भी इजी मेथड हो सकता है डिवाइड करने से 5 से? ये सिर्फ 5 के लिए No, वैलिड है। sir. ओके, लेकिन इसका चलो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। कोई भी नंबर है, सपोज 275 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। तो इसका थोड़ा सा आगे सोच लो ना, 275 को जब मैं डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5 होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या इसको 20 से? तो ये भी मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं 20 से? Yes, sir. या इतना भी लंबा ना करके मैं और भी छोटा कर देता हूँ। 20 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और भी जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड ना, हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में 2 और नीचे भी 2, कितना होगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है ना? तो देखो हम लोग Yes, अभी क्या sir. कर रहे हैं, implies that 275 मल्टीप्लाई 2/10। तो सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूं, जिसको 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2/10 से मल्टीप्लाई भी करना इजी है। 5 डिवाइड ना करके 2/10 मल्टीप्लाई करना सेम है कि नहीं? तो वैसे ही मैं कोई भी नंबर को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और एक पहले से डेसिमल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे 10 है। Okay, sir. सो आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला। Yes, sir. दैट्स ग्रेट। तो और एक क्वेश्चंस कर Sir, लेते हैं। means it implies that divided by 3 5 2 is equal to into 2/10. मल्टीप्लाई 2/10। तो 2 से देखो, कोई भी नंबर को यहाँ पे जो पहला वाला है या दूसरा वाला है, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, और डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या, एक प्लेस पहले डेसिमल पुट कर दिया। Yes, sir. तो सोचे थे, देखो वेस्टर्न वाले मल्टीप्लिकेशन का दूसरा लंबा चौड़ा वाला कंसेप्ट हमको बताते थे, लेकिन हम लोग का इंडिया में इससे भी इजी वाला मेथड शॉर्टकट अवेलेबल है। ठीक है ना? तो कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड Yes, करोगे sir. तो एक चीज बताओगे सबसे पहले, ये कैसे कैलकुलेशन आएगा पता है? सपोज 327 रुपीज पड़ा एक पार्ले-जी बिस्किट का पैकेट को, 327 रुपीज पड़ा एक पार्ले-जी पैकेट का बिस्किट को, और सभी को पता है कि पार्ले-जी बिस्किट छोटा वाला 5 रुपए है। तो कितना पीस आएगा, मुंह पे कैसे बता सकते हो? मुंह पे कैसे बता सकते हो कि वहां पे कितना तो पीस है? चलो यहाँ पे 5 भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होना ही चाहिए ना, 5 रुपए है तो Yes, मल्टीपल sir. होना चाहिए। तो कितना पैकेट बिस्किट था वहां पे, तो उसको पहले क्या करोगे, डबल 5 0 10 7 2 जा 14 plus 1 15 5 1 2 2 4 plus 1 5 3 2 जा 6। कितना पैकेट था, इससे पहले एक डेसिमल लगा दोगे तो कितना हो गया, 655 पैकेट है यहाँ पे। बोल सकते हो ना? तो इसीलिए Yes, मैं sir. ये Yes, सब sir. छोटा मोटा ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, और यूनिवर्सल ट्रिक आगे है हम लोग के पास। तो ये हो गया डिवीजन विद 5। अभी हम लोग सीखेंगे डिवीजन विथ 9 का सीरीज, डिवीजन विथ सीरीज ऑफ 9। विथ 9 9 पढ़ेंगे, उसके बाद डबल 9 पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिपल 9 से डिवीजन करना पड़ेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारा पढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे डिवीजन विथ 9, बताओगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 2315। बिल्कुल क्लियर है? इसको हम लोग डिवाइड कर Yes, रहे हैं। sir.
तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले बताओ। लंबा चौड़ा मेथड, 2 3 1 5 डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं 9, कितना जाएगा 9 2 जा 18, कितना हो जा रहा है 5 51, 9 5 जा 45, फिर जा रहा है 6, फिर यहाँ पे नीचे उतर रहा है 5, कितना जा रहा है 9 6 जा 54, 7 जा 9 7 जा 63, so how much it is coming, 5 minus 3 become 2। तो लंबा चौड़ा मेथड है कि नहीं, लेकिन हम लोग Yes, वन sir. लाइनर मेथड पढ़ेंगे डिवीजन का। चलो सबसे पहले 2 3 1 5 कर दिया, ठीक है। देखो एक लाइन पे इसका आंसर निकलेगा, रेडी हो। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले लिखेंगे 2, हो गया हो गया। Yes, sir. उसके बाद 2 को प्लस करेंगे 3 से और यहाँ पे लिखेंगे, कितना होगा फटाफट 5 Sir, 5. 5, फिर 5 को 1 से प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कितना होगा Six. फटाफट 6. 6 होगा। Sir, 7, sir. वेट, यहाँ पे 6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ी किए हैं टाइप का लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 + 5 बिकम, हाँ सही 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 जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। 6 + 5 बिकम कितना है 11 11 है ना। तो देखो कोई भी डिजिट में ना ये सिंगल डिजिट 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक जगह सिंगल डिजिट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यदि इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 जा जाएगा कि नहीं, फिर 9 1 जा, ठीक है ना। Yes, sir. जाएगा। Yes, तो sir. यहाँ पे जो ये यूनिट डिजिट वाला 1 है, 1 जा जाएगा कह के 1 + 1 करेंगे तो ये आ गया 2, और ये जो 1 है ये इधर चल दिया, तो कितना हो गया 2 5, 6 + 1 7, और 7. यहाँ पे ये आ गया 2। कहने का मतलब है ये है कोशिएंट और ये है रिमाइंडर। Sir, I can't understand what that 11. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ऐसा सिचुएशन आएगा फिर। चलो डिवीजन विथ 9, सो एक क्वेश्चन फिर लेता हूं, 3 8 5 7, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे डिवीजन विथ 9, सब लोग ध्यान से देखना। लिखूंगा मैं पहले 3 8 5 7, फटाफट करते जाओ। पहला है 3 + 8 कितना होगा 11 11, वेरी गुड। उसके बाद 11 + 5 कितना होगा 16 16, 16 + 7 कितना होगा 23 23। तो सबसे पहले बताओ, जब इसको हम लोग डिवीजन विथ 9 कर रहे हैं तो हर एक जगह में कितना डिजिट आना चाहिए 1 1 डिजिट आना digit. चाहिए, Sir, single ठीक है digit. ना? तो सबसे पहला है 23, 23 9 का कितना मल्टीपल से ज्यादा है, 2 मल्टीपल है ना। चलो पहले नॉर्मल डिवीजन में बता देता हूं ताकि कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। ये बहुत इजी है, 3 8 5 7 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो कितना जाएगा सही जा रहा है ना। So is it a proper way? 428 and 5 is the remainder. Tell me yes. Yes, sir. सबसे पहले देखो ये 9 का कितना मल्टीपल है पहले बताओ। 2 sir 9 2 जा 18 है, 18 से थोड़ा ज्यादा है, 3 जा तो नहीं जा रहा है ना, 2 जा ही जा रहा है। तो सबसे पहले 3 को ये 2 से प्लस कर देंगे, कितना हो गया 5 5, तो 5 हो गया रिमाइंडर सीधा फटाफट। उसके बाद ये 2 इधर जाएगा, कितना होगा 6 18 + 2 बिकम 8, फिर ये 1 जो है ये 1 इधर आएगा, कितना होगा 2, फिर ये 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा So 428 एंड 5 इज द रिमाइंडर। तो इजी लग रहा है ना। हाँ सर
पहला Yes, वाला sir. स्टेप पहला वाला स्टेप में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। एक क्वेश्चन फिर करते हैं हम लोग। 2 1 3 2 रेडी। Yes, इसको हम लोग अभी डिवाइड करते हैं 9 से। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला 2 लिखेंगे, 2 + 1 बिकम 3 लिखेंगे, 3 + 3 बिकम 6 लिखेंगे, 6 + 2 बिकम 8. 8 लिखेंगे। डायरेक्टली ये है रिमाइंडर और ये है क्वोशिएंट। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है। yes, sir. हाँ sir. Yes, थोड़ा सा sir. बड़ा वाला नंबर लेते हैं, 8 7 2 4 3। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 से। सब लोग हेल्प करना मुझे। Yes, sir. सबसे पहला है 8, 8 + 7 बिकम 15. 15। तो यहाँ पे 1 को छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि 1 इधर जाएगा, ठीक है, और 5 को बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि 5 इधर का ही है। तो 15 + 2 बिकम कितना होगा? 17. तो 1 7। 17 + 4 कितना होगा? 21. Sir, 21. 21। Yes, sir. उसके बाद 21 + 3 बिकम 24. 24। 24. 9 के कितना मल्टीपल 24 है पहले बताओ? So, Sir, 2 2 पूजा ही है। तो 4 Yes, + 2 sir. कितना होगा? 6. 6 6 क्या है? रिमाइंडर। उसके बाद ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 + 1 3. 3, 3. 2 + 7 9, 9. 1 + 5 6 6. और 1 + 8 9. ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। धड़ांग से। तो हम लोग कोई भी टेबल पढ़ना जरूरी पड़ा? no, sir. डिवीजन को हम लोग एडिशन में खत्म कर दिए। दिस इज वैदिक मैथ। ओके, Yes, one more sir. question as a homework I am giving it to you. 3 7 2 9 8 5 divided by 9. Let us try to do it quickly. Is it done? Yes, sir. 41442 and remainder 7. Great. वेरी गुड। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला चीज तो पता ही है। पहला है 3, 3 + 7 बिकम The 10. 10, 10 + 2 बिकम 12, 12 + 9 बिकम 21, 21 + 8 बिकम 29, 29 + 5 बिकम 34. 34। 34 9 का कितना मल्टीपल है? 3। And 3, sir. 3। तो 4 + 3 कितना होगा? 7. 7 है रिमाइंडर। उसके बाद 3 इधर चल देगा, कितना होगा? 12. 12। 12 मतलब 2 लिखेंगे, कैरी 1। मतलब ये जो 2 है, 2 और कैरी 1 मिलके हो गया 3। सीधा 3 इधर जाएगा, कितना होगा? 3 + 1 4। उसके बाद 2 + 2 4. 4, 1 + 0 1 So, और 1 1. + 3 मिलके 4, 4 1 4 4 2 क्वोशिएंट है और 7 रिमाइंडर है। Sir. ठीक है ना? तो ये जो बीच वाला जो स्टेप है ना, ये जो बीच वाला स्टेप है, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, बिना लिखे भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, जब हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सुपर फास्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो फॉर दैट आई विल बी Yes, गिविंग sir. यू सम प्रैक्टिस सेट्स, सो दैट सबसे पहले तो मैं क्या बोला था कि नॉर्मल मैं जैसे बता रहा हूँ, लॉन्ग थोड़ा सा ऐसा वाला मेथड पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन खत्म करने के बाद दूसरे मेथड पे हम लोग क्या लेवल पे जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, फिर बिना पेन पेपर पकड़े करेंगे, ओरली करते जाएंगे, मेंटली करते जाएंगे, और तीसरा में फिर सुपर फास्ट हो ही जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन बाय 9।
Somebody can take screenshot and post it. Done? If somebody has done, tell me, I can move forward to the next. Done, sir. Okay, now I'm moving forward to the next question, division with 99. So division with 99 is also same pattern, but we need to see some rules and regulation. That's it, finish. तो सब लोग रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहला है 3 4 2 1 3. इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 99 से. तो 99 कितना डिजिट का है पहले बताओ? Sir, 2 digits. 2 डिजिट का. तो सबसे पहले इसका ग्रुपिज्म बनाएंगे 13, 42 और 3 का. दो का ग्रुप बनाएंगे राइट से लेफ्ट. सबसे पहला ग्रुप बन रहा है 13, दूसरा ग्रुप बन रहा है 42, तीसरा ग्रुप में 3 अकेले रह जा रहा है. कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ 0 भी बैठा सकते हैं, लेकिन रो नहीं रहा है तो हम लोग नहीं बैठाएंगे 0. ठीक है, करें प्रोसीड आगे. Yes, sir. इसको देख के तो मजा ही आ जाएगा. सबसे पहला है 3 प्लस 42 कितना हो रहा है? 45. कितना? 3 प्लस 42 45. 45. तो दो डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं. 45 प्लस 13 कितना है? 58. हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 345 और रिमाइंडर कितना है? Sir, 58. 58. बस 58 हो गया ना, काम खत्म. इतना इजी समझे थे? 99 का टेबल पढ़ते, 99 1 जो No, sir. 92 जा 198, 99 3 जा 297, ऐसे से कर करके पढ़े रहते. तो कितना इजीली प्लस करके हम लोग खत्म कर दे रहे हैं. दिस इज वेरी नाइस. नाउ फिर एक तो क्वेश्चन करते हैं. 4 2 9 7 5. रेडी? तो होगा 4 Yes, sir. 2 9 का एक ग्रुप और 7 5 का एक ग्रुप. ये थोड़ा सा एक नॉलेज मिलेगा, उसलिए मैं ये बता रहा हूँ. सबसे पहले मैं लिखा 4 को 29 से ऐड करूंगा, कितना होगा? 34. Sorry, 33. 33 ना? 33. 33. फिर 33 को 75 से ऐड करूंगा, कितना होगा? Sir, 108. 108. देखो 99 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 99 से 108 तो कभी रिमाइंडर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि कोई भी नंबर डिवीजन करते हैं तो ये मतलब डिविडेंड का लेस ही आता है. तो ये 108 जो है ये 99 से कितना मल्टीपल है? 1 मल्टीपल है. तो यहाँ पे जो 108 है इसका 2 डिजिट लोगे, क्योंकि एक टाइम पे 2 डिजिट रहता है. तो 1 मल्टीपल है तो 08 प्लस 1 बिकम कितना हो जाएगा? 9. उसके बाद ये 1 इधर कैरी होगा, कितना होगा फटाफट? 34. और यहाँ पे क्या है? 4. तो ये हो गया हम लोग का क्वोशिएंट और ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर. खत्म. बस यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देना है कि 99 का ये मल्टीपल 1 से आ रहा है, तो ये 1 को इधर ऐड करके इधर लिख दीजिए. ठीक है, Yes, sir. बस खत्म. तीसरा वाला क्वेश्चन 3 2 3 4 5. इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 99 से. पहला क्या करेंगे? ग्रुपिंग बनाएंगे. चलो यहाँ पे और एक डिजिट और 2 डिजिट में ऐड कर देता हूँ, 24. तो क्या क्या होगा? यहाँ पे 2 अकेला, 43 का एक ग्रुप, 23 का एक ग्रुप, 23 and 45 का एक 45. ग्रुप. सबसे पहला है 2 प्लस 43 बिकम 45, 45 प्लस 23 बिकम 68, 68 प्लस 45 कितना होगा? 113. ठीक है, Yes, sir. सबसे पहले बताओ 113 जो है ये 99 का कितना मल्टीपल है? एक मल्टीपल में आ जा Sir, रहा है. 1. तो यहाँ पे जो 13 है, 13 क्या बन जाएगा? 14. ये 1 इधर कैरी होगा, बताओ फटाफट. 69. 9. फिर ये क्या है? 45. ये क्या 45 है? and 2. 2. वेरी गुड. 4 मैं यहाँ 5 पे 6 5. सुनो एक टाइम पे एक गोले वाला जगह में कितना चीज रह सकता है? 2 डिजिट ही रह सकता है, क्योंकि 99 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 डिजिट Yes, रहेगा. sir. तो ये क्या है? क्वोशिएंट. और ये क्या है?
रिमाइंडर। बिल्कुल इजी प्रोसेस है या कोई डिफिकल्टी है? इजी है सर। तो अभी पढ़ते हैं डिवीजन विथ ट्रिपल लाइन। आगे और भी कंसेप्ट्स है, उसको भी मैं बताऊंगा, उसके बाद फाइनल वाला यूनिवर्सल वाला मेथड बता दूंगा। ये भी इजी Yes, है sir. ट्रिपल लाइन भी। तो सबसे पहले 3 2 7 4 2 8 9 को हमको ऐड करना, डिवाइड करना है ट्रिपल लाइन से। तो सेम प्रोसेस है, मैं बस यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद चौबल लाइन 4 टाइम 9 5 टाइम 9 6 टाइम 9 के लिए भी वैसे प्रोसेस है। तो यहाँ पे 3 डिजिट का 9 है, तो क्या करेंगे, 3 डिजिट का ग्रुपिंग बनाएंगे। पहला है 2 8 9 का एक ग्रुप हो गया, उसके बाद 7 4 2 का एक ग्रुप हो गया, उसके बाद क्या बचा 32। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, देखो 2 रिपीट हो गया है कि नहीं। थोड़ा इरेज कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ग्रुपिज्म में मिस्टेक है। नाउ सी एवरीवन, पहला 2 8 9 का एक ग्रुप लिख दो, 2 8 9 का, Yes, वेरी sir. गुड। उसके बाद 7 3 2 7 4 का एक ग्रुप, 274। 2 7 4 का, और अकेला हो गया 3। ठीक है, तो स्टार्ट करो फिर। सबसे पहले होगा 3 को इससे ऐड करेंगे, कितना होगा 2 7 7, 2 7 7 को इससे ऐड करो फटाफट। 566। Sir, बिल्कुल क्लियर है 566। बॉस। तो सीधा Yes, हम लोग sir. बोलेंगे कोशिएंट है ये 3277, और लास्ट में जो डिजिट निकला वो है रिमाइंडर। तो देखो मैं Yes, यहाँ पे sir. कितना कितना डिजिट को एक एक ग्रुप में बना रहा हूँ, 3 डिजिट को एक एक ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल लाइन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फंडा क्लियर है बॉस? Yes, sir. Yes, If there sir. will be 5 9 10 we will फिर एक make तो क्वेश्चन 5 करते digits. हैं। हाँ, तो ये तो इजी हो गया। उसके बाद Yes, दूसरा sir. वाला मेथड में पढ़ा रहा हूँ, जब यहाँ पे भी एक्सीडिंग होता है, रिमाइंडर भी जब ट्रिपल लाइन से ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 7 8 9 6 3 2, इसमें पक्का डिवीजन ट्रिपल लाइन से ज्यादा होगा, मतलब रिमाइंडर ट्रिपल लाइन से ज्यादा होगा। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ग्रुपिंग बनाओ 3 3 2 का, तो यहाँ पे हो गया 42, यहाँ पे होगा 789, यहाँ पे होगा 632। सबसे इजी मेथड, पहले लिखेंगे 42 को यहाँ पे ऐड करके लिखो फटाफट 831। 831, वेरी गुड। 831 को 632 से ऐड करके बताओ फटाफट 1463। बिल्कुल क्लियर है बॉस। उसके बाद बताओ 1463 ट्रिपल लाइन का कितना मल्टीपल है? एक ही मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 1 मल्टीपल है, तो इसका जो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट से 1 प्लस कर दो, कितना फटाफट 464। 464। तो ये हो गया रिमाइंडर। ये 1 इधर फेंक दो, कितना हो गया 832, और ये जो 42 चिपका है इसको भी चिपका दो। तो ये हो गया हम लोग का क्वोशिएंट, और ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो इजी है कि नहीं? Yes, sir. यस नहीं तो सर, बहुत ट्रिपल लाइन इजी से है। डिवाइड कर करके रह जाते, ठीक है ना। Yes, sir. तो उसके बाद अभी जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं वो नवीन के लिए बहुत फायदेमंद है, एंड दोज हु आर गोइंग टू क्लास 9th, शिवम, आफ्टर दैट विवान, फॉर देम इट इज रियली गोइंग टू बी यूजफुल, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पे ये लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, टेल मी। Sir, if in the front there will be 3 digits, then how we will do? वो आ रहा है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। आज पहले इजी Okay, चीज को sir. पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर परसों फिर एक लेवल बढ़ेगा। हम लोग का शायद डिवीजन 3 डेज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब डिजिट इक्वल हो जाए, देखो अभी वही कंसेप्ट आ रहा हूं, जब डिजिट इक्वल हो, जैसे कि 2 3 9 है, ठीक है, और मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको ट्रिपल लाइन से, यहाँ पे डिजिट इक्वल है। Yes, उद्भव, sir. आई एम कमिंग टू योर कंसेप्ट आल्सो। जब यहाँ पे डिजिट इक्वल है तो क्या करेंगे बताओ। बताओ। Sir, 239 will be in a single group. नहीं, हम लोग थोड़ा फॉर्मूला चेंज करते हैं। जब सिंगल डिजिट हो, मतलब सेम डिजिट हो, तो पहले लिखेंगे 239, उसके बाद उससे पहले डॉट लगाएंगे,
उससे पहले 0 लगाएंगे और 239 के ऊपर बार लगाएंगे। और इसका कहने का मतलब ये है कि 0.239 डिवाइड करते आएंगे तो 239 बार 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 निकलेगा इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, Yes, Yes, चलो sir. एक छोटा वाला क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 9 के साथ। ये तो इजी है, कर भी सकते हैं। तो 1 को 9 के साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू मी 0.1 और 1 के ऊपर बार, और 1 के ऊपर बार कहने का मतलब क्या है? 0.111111 डॉट 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 ऐसा 1111 आते रहेगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 1 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, तो नहीं जाएगा तो 0 जाएगा। 9 0 जा 0, तो 1 से 0 गया 1, डेसिमल लगाया तो क्या हो गया 10, 9 1 जा 9, सो 10 - 9 फिर कितना हो गया 1, डेसिमल लगा है तो फिर 10 हो गया, 9 1 जा 9, सो फिर 10 से 9 गया 1, फिर 9 1 जा 9, Yes, सो sir. 10 से 9 गया फिर 1, और यहाँ पे 1 1 1 आते रहेगा, और यहाँ पे भी 1 1 1 1 आते रहेगा, यहाँ पे डॉट 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 डॉट। तो ये जो 0.1111 आ रहा है तो इसको मैं लिख दिया 0.1 बार, और सभी को समझ में आ गया मेरे हिसाब से। Yes, Yes. तो sir. क्लास 9 पे जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या क्लास 9 से जो पास कर गए, तो ये लोग ऑलरेडी क्लास 1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पे पढ़े हैं कि 0.34 बार को नंबर लाइन पे डिस्प्ले करो, या 34 बार को p/q फॉर्म पे लिखो, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे नंबर क्या है? 34 है, और कितने नंबर के ऊपर बार है? दोनों के ऊपर बार है, तो सीधा डबल लाइन से डिवाइड करोगे, और वही हम लोग पढ़ रहे थे। 34 को डिवाइड कर रहे हैं डबल लाइन से, सेम है ना ये? 34/99 या 34 डिवाइडेड बाय 99, बोथ आर सेम। Yes, sir. यस, तो ये क्लास 8 वालों के लिए इजी हो गया। रेशनल नंबर चैप्टर आ रहे हैं, फिर वहां पे भी मैं बता दूंगा कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. 33 डिवाइडेड बाय 99, फटाफट आंसर दो। 34 डिवाइडेड बाय 99, फटाफट फटाफट। Sir, 0.34 बार। उसके बाद 27 डिवाइडेड बाय 99 कितना होगा? फटाफट फटाफट। 0.27. 0.27 बार। सो 333 डेसिमल 999, फटाफट बताओ। 0.333 bar. bar. 0.333 बार। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। 23 डिवाइडेड बाय 9999 कितना होगा? सुनसान हो गया ना सब लोग? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 डिजिट है तो इसको 0 0 लगा के। 0.00239. अरे नहीं, 239 नहीं आएगा ना, 9 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे भी 4 डिजिट बना सकते हो ना पहले से, 2 0 डाल के। तो लिख दो सीधा Yes, sir. 0.0023 और 0023 के ऊपर बार। हो गया खत्म। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम Yes, लोग आज sir. क्या क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि सबसे पहले सिंगल डिजिट में डिवाइड करते कैसे Sir, करते where हैं। to put decimal in last one? हाँ, सॉरी, In last one, where to put the decimal? पुट द डेसिमल जरूरी है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर ही दिया जाता है हमको p/q फॉर्म पे लिखने Sir, के लिए। where to put? वेयर टू पुट डेसिमल को? देखो 0023 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 34 देखे थे तो 34 के पहले डेसिमल लिए थे। यहाँ पे 27 है तो 27 के पहले डेसिमल। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 9 तो 1 के पहले डेसिमल। यहाँ पे 239 था तो यहाँ पे 239 के पहले डेसिमल। तो वैसे ही यहाँ पे 0023 है तो 0023 के पहले डेसिमल लगाएंगे। Yes, sir. क्लियर? तो आज क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट का, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिवीजन बाय 5, फिर तीसरा पढ़े थे हम लोग डिवीजन बाय 9, 9. उसके बाद डिवीजन बाय 99, उसके बाद डिवीजन बाय 999। 999. शायद हम लोग इतना ही पढ़े थे। उसके बाद बहुत सारा कंसेप्ट है, डिवीजन Yes, बाय sir. 8 कैसे करोगे, डिवीजन बाय 4 कैसे करोगे। चलो हम लोग कुछ फॉर्मूला भी बना लेते हैं। कोई भी नंबर को डिवीजन बाय 4 करेंगे तो क्या होगा? तो वही नंबर को यदि मैं x ले लेता हूं तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 बन जाएगा 1/4। ठीक है ना? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
तो कहने का मतलब क्या है, x के साथ 25 को मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर निकलेगा उसका 2 प्लेस पहले मैं डेसिमल पुट कर दूंगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा है तो 4 से डिवाइड करना उतना ज्यादा काम का नहीं है, उसीलिए मैं नहीं बताया। नहीं तो इसका भी फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैदिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, नॉर्मल थोड़ा इजी है। लेकिन डिवीजन बाय 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं बता दिया कि डिवीजन बाय 5 कैसे करना है। Yes, sir. बस उसको डबल करना है और एक प्लेस पहले डेसिमल पुट करना है, खत्म। उसके बाद डिवीजन बाय 9, डिवीजन बाय डबल 9, डिवीजन बाय 999 ये भी पढ़ लिए, जो कि हम लोग का कैलकुलेशन को बहुत इजी बना लिया। ओके, क्लियर? Yes, sir. इज इट? ग्रेट। Yes, तो sir. अभी हम लोग फिर क्या करेंगे,